Okay, so I hope the screen is visible to you all. Okay, so now today we'll cover the last two cases of the shortcut method. Okay, so total there are 9 cases, 9 special functions are there under the shortcut method. Okay, we have started with the exponential function. Okay, where we replace d by a, correct, where we replace d by a. Then a raised to x or a raised to minus x, where we have to replace d by either log a or minus log a. Next is sine function and cos function, trigonometric function. In this case we have to replace d square by minus a square. Then sine hyperbolic function and cos hyperbolic function. In this case we have to replace d square by a square. Remember, for trigonometric function and for hyperbolic function we have to replace d square, not d. Okay, so there is no change in d, but we just replace d square by that corresponding value. Okay, the next case is polynomial function. Yes, can anyone tell me what are the results for a polynomial function? यहाँ पे मैंने डायरेक्टली ये एक ही हिंट ही दी है, but can anyone tell me what are the steps to solve that particular integral in case of polynomial function? What is step 1, step 2? क्या करना है इसमें? Yes, 1/phi of d when we apply on a polynomial function some p of x. What are the steps? Yes, 1 plus gamma d. We take the common term of lowest degree. yes. Okay, so from the denominator we have to take a lowest degree term common. Okay, so that you can this 1/phi of d is converted into 1/1 plus something. Okay, at the end आपको उस 1/phi of d को at the end आपको at the end we have to convert this 1/phi of d in terms of 1/1 plus x or in terms of 1/1 minus x. यही लॉजिक है उसके पीछे, इसलिए आप वो लोवेस्ट डिग्री टर्म कॉमन लेते हो. ओके, सो रिमेंबर इन केस ऑफ पॉलिनोमियल फंक्शन वी हैव टू कन्वर्ट 1/phi of d, okay, in the form of 1/1 plus x or in the form of 1/1 minus x. Okay, now the last two cases, okay, e raised to x into v and x into v. Okay, so this in last two cases here you can see the product of two function in which one function in first case your first function is exponential function multiplied by any other function, v is any other function. So first result is about the multiplication by exponential function and second case is about the multiplication by x. Remember like this. Okay, multiplication by e raised to ax and multiplication by x. Okay, so let us say this now. Okay, so the next case is multiplication by e raised to x. Okay, means now onwards your function is of this type. Okay, a function which is multiplied by e raised to x or e raised to x into v, where v is any other function, where v is any other function of x, where v is some function of x, like say p1 of x, any other function in x. Okay, okay, and what is the formula? Okay, for this case, so 1/phi of d e raised to x into v. Okay, it is equal to e raised to x. तो पहले आपको क्या करना है, just take this exponential outside to this particular integral. So e raised to x into 1/, in that phi of d replace d by d plus a. Okay, so d by d plus this coefficient e raised to x में जो x का coefficient है वो, so d plus that coefficient. Okay, so replace d by d plus that coefficient. First take out this exponential outside this particular integral, then in that phi of d just replace d by d plus a and keep this v as it is. Okay, now so after doing this simplification, here you will get one more particular integral, है ना, 1/phi of d into v इस फॉर्म में आपको ये दिखाई दे रहा है. ठीक है, so this particular integral we have to solve using previous cases. So after performing this, now you will have a single function on this side. Okay,
and to solve this particular integral, you have to consider the previous cases. So solve this using previous cases. So what are those previous cases? V may be exponential again. Sorry, but let it be. V may be exponential. V may be a raised to x or a raised to minus x. V may be sin x. V may be cos x. V may be sin hyperbolic. It may be cos hyperbolic, or it may be a polynomial. ज़्यादातर polynomial आते हैं. ठीक है, तो ये जो v होगा, ओके, फॉर दिस v वी हैव ओनली दिस मेनी पॉसिबिलिटीज. तो जो भी क्वेश्चन आपको इस टॉपिक पे आने वाला है उसमें v के जगह पे इनमें से ही कोई एक वैल्यू वहाँ पे होगी. So these are the only possibilities for v, because only in this case you can use the shortcut method. For the other random function you can't use this shortcut method. Okay, so that v may equal to exponential a raised to x sin cos hyperbolic or polynomial function, and just solve this particular integral using those results. You will get that final answer. Okay, let us take one example solved by the previous cases of shortcut method. Okay, So, yes. in that previous scenario, e raised to ax is also possible. Sorry, can you repeat again? So here, after simplification, we got now that Yes. e raised to 1 upon pi of t plus a into v. हाँ, So we need e raised to ax is also a function of x. e raised to x is Is also a function of x, no? हाँ. So this is the result. Okay, आपका ये क्वेश्चन है कि ये बाहर कैसे आ रहा है? Is this your question? Yes. See, this is the result. Okay, so you can do this proof also. This is the result. Okay, this is the result. These two values are always equal. This is the result. Okay, ये जो भी फॉर्मूला मिला इसके पीछे भी एक सिंप्लीफिकेशन होगा ना, इसके पीछे भी एक सिंप्लीफिकेशन होगा, इसके पीछे भी कुछ तो प्रूफ होगा ना. ठीक है, so after doing that simplification, you will get this e raised to x outside to this particular integral. Simply you can take any simple function v here and you can check whether these two values are equal or not. This is the simplification for any a function of this type. Okay, 1 upon phi of d into this always equal to e raised to x into 1 upon phi of d plus a into v. Okay, this is the result. Previous cases में भी ऐसे ही सारे ट्रिक है. ठीक है, जिसका प्रूफ अगर आपको देखना है आप एक पर्टिकुलर फंक्शन लेके भी देख सकते हो, और मैथमेटिकल आल्सो यू कैन प्रूव. ओके, सो इट इज़ अ रिजल्ट डायरेक्टली. ओके, दैट यू हैव टू कंसिडर. ये बाहर आ रहा है, इसके पीछे कोई मैथमेटिक्स या उसके पीछे सिंप्लीफिकेशन है, देयर इज सम प्रूफ. ओके, एंड आफ्टर जैसे ये बाहर आता है, ओके, सारे स्टेप्स में आपको e raised to x एज इट इज कॉपी करना है. ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी वो पर्टिकुलर इंटीग्रल से आपने बाहर लिया है. ठीक है, ओके, let me take one example and I can will discuss on this part. Okay, so for example, question 1, solve d square minus 4d plus 3 times y is equal to x cube into e raised to 2x. ठीक है, हाँ, अभी आपने जितने भी केसेस अभी तक आपने लर्न किए, कैन वी अप्लाई दोज केसेस for the particular integral of this given differential equation? Can we apply? First answer this question. अभी तक आपने जितने भी केसेस देखे उनमें से कोई भी केस यहाँ पे यूज हो सकती है क्या? नहीं हो सकती, क्योंकि जितने भी केसेस थे वहाँ पे एक सिंगल फंक्शन था. दैट सिंगल फंक्शन में भी एक्सपोनेंशियल ए रेज़ टू एक्स साइन कॉस साइन हाइपरबोलिक कॉस हाइपरबोलिक और पॉलिनोमियल फंक्शन. ठीक है, तो वो किसी भी सेट में फिट नहीं हो रहा है, इसलिए हमें नेक्स्ट केस पे ऊपर जाना होगा. नेक्स्ट केस क्या है? मल्टीप्लीकेशन बाय ई रेज़ टू एक्स. So here you can see this is a function in which your one function is exponential and v is any other function. So this you can treat as e raised to ax into v. Okay, where v is what? x cube. तो ये आपका शॉर्टकट मेथड से हो जाएगा. शॉर्टकट मेथड में भी दो रेस्ट्रिक्शन या दो कंडीशन है, जिसमें मतलब वो जो मल्टीप्लिकेशन में जो आपके फंक्शंस आ रहे हैं उनमें से फर्स्ट फंक्शन आपका एक्सपोनेंशियल चाहिए, दिस इज वन केस. जो सेकंड केस है उसमें फर्स्ट फंक्शन आपका x चाहिए, ओनली x. ठीक है, तो अभी ये सेम क्वेश्चन आप ना नेक्स्ट जो नेक्स्ट रूल है x इंटू वी से भी कर सकते हो, ये सेम क्वेश्चन. बट अभी मैं वो कॉम्प्लिकेशन नहीं करने मतलब आई डोंट वांट टू डिस्कस दैट केस राइट नाउ. ओके, सो सिंस हियर एक्सपोनेंशियल इज देयर, सो यूज एक्सपोनेंशियल केस एंड सॉल्व दिस पर्टिकुलर इंटीग्रल. ओके, सो इन सॉल्यूशन, first tell me what is the complementary function. Okay, so for that consider auxiliary equation. So tell me the auxiliary equation, anyone? M square minus 4m plus 3 equals to 0. Very good. M square
माइनस 4m प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये करेक्शन शायद उस PDF में नहीं है, बट मैं लास्ट में आपको एक अपडेटेड PDF देता हूँ, तो उसमें ये करेक्शन करके देता हूँ, ठीक है। सो बट अभी आपको क्लियर हो गया है, ओके। आपसे आंसर भी मुझे यम में ही आ रहा है, बट रिमेंबर ऑलवेज व्हेन यू कंसिडर ऑक्सिलरी इक्वेशन डोंट यूज दिस डी, ओके। मैथमेटिकली कुछ भी रॉन्ग नहीं हो रहा है, बट डी स्टैंड्स फॉर डेरिवेटिव एंड यू कांट कंसिडर पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव, सो विच इज़ टोटली रॉन्ग, ओके। इसलिए एक हमें वेरिएबल लेना होगा, आप एक्स भी ले सकते हो, आप यम भी ले सकते हो, आप के भी ले सकते हो, कोई भी कुछ भी, ठीक है। व्हाट आर द रूट्स ऑफ दिस? 1,3. 1,3 and what is the yc then? What is the yc? C1 e raised to C1 is e to x plus e to the power thrice x. ठीक है। सो आई थिंक अभी कॉम्प्लीमेंट्री सबको क्लियरली समझ में आ रहा है। नाउ लेट अस राइट द yp। फर्स्ट टेल मी द फॉर्मूला फॉर yp। यस, व्हाट इज 1 द upon phi of d into f of x. वेरी गुड, 1 upon phi of d into f of x, ये मेन फॉर्मूला, ठीक है। इफ आई पुट ऑल दिस वैल्यूज हियर यू विल गेट 1 upon d square minus 4d plus 3 into this x cube into e raised to 2x, okay. Now this is the result, okay, this is the result. E raised to x comes outside, in that d we have to replace d by d plus a into b, okay. When you do this, then only these two values are equal, okay. You can check by taking one simple example, okay. When you do this, then only these two values are equal. So perform the same operation here, and can anyone tell me what is the, what we have to write in the next step? E raised to 2x. We have to take this outside, in that d D square minus d replaced by d plus 2. 2 है ना, a मतलब यहाँ पे 2 है, so d replaced by d plus this number, so d plus 2 square minus 4 into d plus 2 plus 3, okay, and into v as it is, means your x cube as it is, ठीक है, okay. So which is equal to e raised to 2x, okay, 1 upon, if I do this simplification, you will get d square plus 4d, correct, plus 4 minus 4d minus 8 plus 3 and into your x cube as it is, okay. And this is equal to e raised to 2x 1 upon, yes, plus 4d minus 4d cancel हो जाएगा, what is this? d D square square minus minus 1 into x cube. Now आगे कैसे करोगे आप? What is your next step then? What is your next step? using the 1 upon 1 minus x square formula. So on RHS here you will have the polynomial function, correct? Here you will have a polynomial function. So 1 upon we have to convert this 1 upon phi of d. ये इस लॉजिक से याद रखो, we have to convert this 1 upon phi of d in terms of 1 upon 1 plus something, okay. So to do this, so already this given particular integral is there in this form, बस आपको माइनस कॉमन लेना है, या इसमें करना है या 1 upon 1 minus x में, that will not मतलब किसी भी एक केस में ट्रांसफर करो, okay. So already it is so this given differential this given yp is already there in this form, 1 upon 1 plus 1 upon 1 minus x, just we have to adjust the minus sign, so this can be written as minus e raised to 2x 1 upon 1 minus d square into this x cube. Now what is the formula of 1 upon 1 minus x? If you remember, what is the 1 plus x square plus x cube and so on. सारे प्लस साइन आते हैं, so it is equal to 1 plus x plus x square, okay. So कहाँ तक लिखना है? x cube and so on into x cube. कहाँ तक लिखना होगा मुझे बोलो? थर्ड डिग्री, तो ये थर्ड से आगे जा रहा है ना, डिग्री 4 हो रहा है, सो आई थिंक नो नीड टू कंसिडर दिस टर्म ऑल्सो, डिग्री 4 हो रही है ना, d raised to 4 हो रही है, सो जस्ट यू हैव टू कंसिडर ओनली 1 plus d square, so minus this 1 plus d square. Now let me show you here on slide, it is there.
So 1 plus x square plus x cube. Okay, no need to consider this term, so consider only this. So it is equal to minus e raised to 2x. Okay, multiply karo, 1 into this become x cube. D square of x cube is what? D square of x cube is what? 6x. हो गया, ठीक है. दिस इज योर फाइनल yp. जस्ट ऐड yc प्लस yp, दैट बिकम द फाइनल आंसर. तो इसमें कुछ भी नहीं है एक्स्ट्रा. इसमें क्या हो रहा है, तो दिस केस इज दिस फॉर दिस केस यू हैव टू प्रिपेयर द प्रीवियस केसेस. ओके, ये केस आपको तभी समझ में आएगी जब आपको सारे प्रीवियस केसेस अच्छे से आ रहे हैं, क्योंकि इस केस में बस विद इन वन स्टेप, एक ही स्टेप में आप उसको प्रीवियस केसेस में कन्वर्ट करते हो. ओके, ये जो फॉर्मूला है, जब आप ये फॉर्मूला यूज़ करते हो, इसका मतलब क्या है, इमीडिएटली आपने उस प्रॉब्लम को प्रीवियस प्रॉब्लम में कन्वर्ट किया. तो बस इतना ही आपको याद रखना है. एंड इसका प्रूफ मैं आपको जैसे प्रीवियसली एक हिंट दी थी, वैसे भी आप कर सकते हो. सी दिस ऑल प्रूफ्स आर वेरी ट्रिवियल. ओके, इफ यू वांट मी टू गिव प्रूफ ऑफ ऑल दिस थ्योरम, जस्ट टेल मी, मैं डायरेक्टली पीडीएफ आपको शेयर कर देता हूँ. इट इज़ नॉट एट ऑल डिफिकल्ट. मैं आपको एक हिंट देता हूँ, सारे केसेस में हमने क्या किया, आपको अगर वो समझ में आता है ना, तो यू कैन फाइंड इट्स प्रूफ. ठीक है, आपको अगर याद आ रहा होगा, किसी एक केस में डिस्कस करता हूँ. साइन ऑफ एक्स प्लस बी, हाँ सॉरी, साइन ऑफ एक्स प्लस बी में हमने रिजल्ट क्या देखा है, डी स्क्वायर को रिप्लेस करना है माइनस ए स्क्वायर. क्या रीजन दिया था मैंने इसका, किसी को थोड़ा बहुत तो याद आ रहा है इसमें, क्या रीजन दिया था इसका? एनीवन रिमेंबर व्हाट इज द रीजन? If we double differentiate it, we will get the same function. हाँ, तो अगर आप मतलब आपको एट द डेरिवेटिव लेते जाना है और सेम फंक्शन जहाँ पे भी आता है, ओके, उस अकॉर्डिंग ये सब्स्टिट्यूशन होता है. ठीक है, यू कैन फाइंड दिस प्रूफ इन एनी बुक. ओके, सो डी ऑफ साइन ऑफ एक्स प्लस बी, अगर आप फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव लेते हो या फर्स्ट डेरिवेटिव लेते हो, इट गिव्स मी ए कॉस. यू विल नॉट गेट दैट सेम फंक्शन, आपको सेम फंक्शन चाहिए, इसलिए आप एक और बार डिफरेंशिएट करते हो. ठीक है, देन इट गिव्स यू माइनस ए स्क्वायर साइन ऑफ एक्स प्लस बी. देयरफॉर योर सब्स्टिट्यूशन इज डी स्क्वायर रिप्लेस बाय माइनस ए स्क्वायर. सेम यहाँ पे भी करना है. व्हेन यू कंसिडर डी ऑफ ई रेज टू एक्स इंटू बी, ओके, फाइंड इट्स फर्स्ट डेरिवेटिव. इट विल टेक टाइम. यहाँ पे डी प्लस ए जनरेट होने वाला है, मैं आपको दिखाता हूँ. ओके, व्हाट इज द डेरिवेटिव, एनीवन बोलो? फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, डी मतलब डेरिवेटिव, यस, सेकंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट क्या लिखना है? A into e to the power x. x into v. Okay, now let me take another color. So it is equal to, क्या कॉमन आ रहा है? e raised to ax कॉमन आ रहा है, और क्या आ रहा है? v भी कॉमन आ रहा है ना? हाँ, e raised to x into v, and then what is in the bracket? ये भी कॉमन लिया, ये भी कॉमन लिया, d plus va. हाँ, d plus a. ठीक है, So, हाँ, so there it is derivative of b. So can we take v common? सॉरी, In the first term, we are having derivative of v. हाँ, So we can take the v common from that term also. एक मिनट ना, मैंने क्या लिखा एक बार देखता हूँ. हाँ हाँ, ये ऐसे नहीं लिखना है, ऐसे लिखना है. और क्या रह जाता है? e raised to x into d plus 1. Sir, derivative can be separable? हाँ, अभी करेक्ट है क्या देखो? Sir, हाँ, derivative can be separable लिख सकते हैं? कर सकते ना. अभी आप ये टर्म चाहिए ना आपको, कैसे भी करके. अभी इसमें वो एडजस्ट हो रहा है ना, d इंटू वी, ये ऑपरेट किया है मैंने, दिस इज द ऑपरेटर. ये बाहर नहीं लिख सकते थे, दैट विच इज टोटली रॉन्ग. कॉमन नहीं ले रहा हूँ मैं. अब मैं क्या कर रहा हूँ, डी वी प्लस ए, सॉरी, हाँ, डी वी को मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, डी इंटू, सॉरी, डी वी को मुझे एडजस्ट करना है, डी प्लस ए इंटू वी. इसकी वैल्यू क्या है बोलो? डी वी नहीं ना, ए वी एडजस्ट करना है ना, करेक्ट ही लिखा है मैंने. ये ए वी है, ये ऑपरेटर अलग है. इसमें ना जस्ट गिव मी 1 मिनट, लेट मी इरेज एंड राइट इट इन अ प्रॉपर वे. ओके, e raised to ax, ओके,
ये पहले बाहर लेता हूँ मैं. सो व्हाट इज इन द ब्रैकेट? dv, करेक्ट. अभी ये आपने इसको चेंज नहीं कर सकते बिकॉज इट्स अ डेरिवेटिव ऑफ v फंक्शन. हाँ, a कांस्टेंट है, ओके, v भी कांस्टेंट है, और यहाँ पे एक और भी आ रहा है ना, v का एक कोई तो इशू हो रहा है, मुझे ये एडजस्ट करना है. तो अभी v नहीं चाहिए. ये एक बार देखता हूँ. फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड, ये v नहीं है ना, ये गलती की मैंने, तभी एडजस्ट नहीं हो रहा है. फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट. नाउ इट्स करेक्ट. हाँ, ये v नहीं है, नाउ इट्स करेक्ट. अभी बोलो. सो इफ आई टेक e रेज टू x कॉमन, ओके, व्हाट इज इन द ब्रैकेट? dv प्लस av. करेक्ट है? ये समझ में आ रही है स्टेप? अब इसमें कुछ डाउट्स है? एंड दिस कैन बी रिटर्न एज, यहाँ से भी आप v कॉमन ले सकते, बट v यहाँ पे नहीं आने वाला, ये ऑपरेटर है, इसलिए मैं आपको ये एक्सप्लेन नहीं कर रहा था. ठीक है, अभी मुझे ना वो भी एक्सप्लेन करना होगा ऑपरेटर के ऊपर ये कैसे होता है. d प्लस a इंटू वी, दिस इज द फाइनल सिंप्लीफिकेशन. सी याद रखो, ये ऑपरेटर जब होता है ना, ऑपरेटर, या आपको वेक्टर टॉपिक है ना, उसमें भी आपको ये सारी चीज़ें समझ में आएगी. आप डी के ऊपर करने वाला हो, वो जो रूल होता है ना, वो आपको प्रॉपर यूज़ करना पड़ता है. मतलब आपको एक रिजल्ट पता है, ए बार डॉट बी बार, ये कम्यूटेटिव होता है, बट व्हेन यू कंसिडर ऑपरेटर इट इज़ नॉट अ कम्यूटेटिव. मतलब ऑपरेटर कि अगर ये राइट साइड में ऑपरेट हो रहा है तो आपको राइट साइड में ही रखना होगा. यू कांट राइट दिस डी वी एज वी इंटू डी, ये पॉसिबल होगा नहीं, क्योंकि डेरिवेटिव इज ऑपरेटर, डी ऑफ वी होता है वो, डी ऑफ वी कांट बिकम वी इंटू डी. ठीक है, ये ऑपरेटर के केस में ऐसे चेंज नहीं होता. नंबर है वहाँ पे, जैसे ये ए वी फंक्शन है, नंबर या फंक्शन है, तो उस केस में आप इसको चेंज कर सकते हो, इसलिए ये वी राइट साइड में ही आएगा. ठीक है, ओके, जाने दो, इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, बट दिस इज द रीजन. ओके, तो यू कैन चेक दिस प्रूफ, इट इज़ नॉट एट ऑल डिफिकल्ट. Let me take one more question. If time permit, we'll discuss that part. Okay. So question number 2, d cube y upon dx cube minus 7dy by dx minus 6y is equal to e raised to 2x into 1 plus x. Okay. Now I am not interested in the complementary function. Okay. Now I request you all to find its particular integral. मैं वेट करता हूँ एक मिनट, आप मुझे डायरेक्टली इसका व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर पर्टिकुलर इंटीग्रल, क्या लिखना है डायरेक्टली बोल सकते हो. डी क्यूब माइनस 7d माइनस 6 सॉरी माइनस 6 ओके ऑफ e रेज टू 2x इंटू 1 प्लस एक्स. प्लीज डू इट, डू इट. आपको मैंने पहले बोला था, आप नोटबुक लेके बैठो. प्लीज डू इट एंड टेल मी फाइनल आंसर. जिससे जल्दी मिलता है उसका मैं लिख लेता हूँ. डू इट एंड टेल मी फाइनल आंसर. ज़्यादा टाइम नहीं है, आपको जल्दी जल्दी करना है. यस, किया है किसी ने?
आर यू डूइंग और नॉट, इतना तो बोल दो तो भी मैं वेट करता हूँ. Yes, sir. ओके हाँ ठीक है. सेम प्रॉब्लम है, सेम फंक्शन भी मैंने लिया है, पॉलिनोमियल का ही फंक्शन है. Done, so. हाँ बोलो. So final answer is e raised to 2x upon 2. E raised to 2x divided by 2 in bracket 1 plus x 1 plus x plus pi by 2. plus Pi by 2. pi by 2. करेक्ट लिखा है क्या मैंने स्क्रीन पे, आप देखो. Yes, sir. ओके. अदर स्टूडेंट्स whether you So are that हाँ it has this bracket 1 plus x plus pi by 2 one bracket. ओके. सो ये पूरा एक ब्रैकेट में है क्या? Yes, sir. ऐसे ही ना. Yes, sir. यस. अदर स्टूडेंट्स प्लीज चेक वेदर दिस आंसर इज करेक्ट, और ये आपसे मैच हो रहा है कि नहीं, या किसी को अदर देन दिस आंसर आ रहा है. ओनली वन आंसर आई गॉट. यस. और किसी को भी कुछ भी आंसर नहीं आ रहा है? ओके. सो लेट अस चेक वेदर दिस इज करेक्ट और नॉट. ओके. So this is the case, 1 upon phi of d e raised to x into b. Okay, what is the rule? We have to take this exponential outside first, okay, and then replace d by d plus this a into v as it is. Okay, do this simplification, a plus b whole cube, and so after doing the simplification you will get d cube plus 6d square plus 5d minus 12 into this. Okay. In next step, as we know that on RHS here we have a polynomial function. Okay, so we have to take a lowest degree term common. So I will take this minus 12 common. Okay, so in place of minus 12 now we have to consider 1 and this whole term divided by minus 12. So ये minus यहाँ पे adjust किया. So at then मैंने ये 1 upon 5 of d जो था उसको मैंने 1 upon 1 plus x में convert किया. ठीक है, just by taking this minus 12 common. Okay. Now this is a polynomial of degree 1, this is a polynomial of degree 1, and this is of the type this 1 upon 1 minus x, ये इस फॉर्म में आ रहा है. दिस इज द polynomial of degree 1. तो आपको सीरीज कहाँ तक रन करनी है? I will repeat again, since we have a polynomial of degree 1 and it is this 1 upon 5 is of the form 1 upon 1 minus x. So tell me this series कहाँ तक रन करनी है आपको ये सीरीज? 1 plus x. 1 plus x तक, क्योंकि डिग्री 1 है ना. सो जस्ट कंसिडर 1 plus x. सो दिस गिव्स मी 1 plus x into this 1 plus x. Okay, now since we have a polynomial of degree 1, so degree so order 2 onwards सारे डेरिवेटिव आपके 0 हो जाएंगे या कैंसिल ही करने हैं आपको. Okay, so since we have a polynomial of degree 1, so delete this d square and d cube, so you will have only this. ठीक है. now multiply in bracket, so e raised to 2x upon minus 12 1 plus x into 5d by 12 into 1 plus x, take its derivative. So e raised to 2x upon minus 12 1 plus x as it is 5 by 12, derivative is 1. so finally I'm getting this. okay, चेक करो अगर कहीं पे कुछ मिस्टेक है तो मुझे बोलो. ठीक है. एनी डाउट इन दिस क्वेश्चन? No, sir. सिंपल है. ओके, थोड़ी बहुत प्रैक्टिस से आपको समझ में आ जाएंगे. नाउ टेल मी अबाउट दिस. डायरेक्टली वाई पे बोलो मुझे कैसे करना है. मैं लिख लेता हूँ 1 upon d square minus 4d. इट्स बेटर लेट मी शो यू ऑन अ स्लाइड. वाई पर टाइम जाता है. या इसके आगे क्या करना है आप बोलो. ठीक है.
ओके यहाँ पे मैंने क्या किया है, जस्ट फॉर अ सिंप्लीफिकेशन दिस डी स्क्वायर माइनस 4d प्लस 4, ओके आई हैव कंसिडर दिस वैल्यू इन टर्म्स ऑफ d माइनस 2 होल स्क्वायर, जस्ट फॉर सिंप्लीफिकेशन। आपको आप नहीं भी करते तो भी कुछ ज़्यादा इफेक्ट होगा नहीं, ठीक है ना। व्हाट इज द रूल, कैन यू टेल मी द नेक्स्ट स्टेप आफ्टर दिस? यहाँ तक तो ट्रिवियल है, इसके आगे क्या करना है बोलो? e raised to x And we'll outside replace d by d plus 1. हाँ, replace d by d plus 1 as a is 1 minus 2 whole square cos square x, and if I do this simplification you will get d minus 1 whole square cos square x. Now how you solve this? This is my main question. यहाँ तक तो ठीक है, रूल अप्लाई करके नाउ दिस होल पर्टिकुलर इंटीग्रल इज कन्वर्टेड इनटू अ प्रीवियस केस. नाउ टेल मी हाउ यू सॉल्व दिस. इसको कैसे करोगे ये मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया था आपको. By applying formula of Means what? Which formula we have to apply here? after simplification we will get 1 plus cos 2x upon 2. वेरी गुड, ठीक है. तो आपको मैंने पहले ही क्लियर किया था साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, उन सारे केसेस में आपको ट्रिग्नोमेट्रिक सिंप्लीफिकेशन करना है, एंड आफ्टर दैट ओनली यू कैन यूज द शॉर्टकट मेथड. सो हियर वी हैव दिस cos स्क्वायर एक्स. तो पहले आपको cos स्क्वायर एक्स का सिंप्लीफिकेशन लिखना है विच इज 1 प्लस cos 2x बाय 2, एंड आफ्टर दैट you can solve using this shortcut method. Okay, so replace this cos square x by 1 plus cos 2x by 2. Now this can be written as this 1 can be written as e raised to 0x. You can take this 1 by 2 outside to this whole particular integral. Okay, so it become e raised to 0x plus cos 2x. Now separate this particular integral with respect to this addition. So this become e raised to x by 2 1 upon d minus 1 whole square e raised to 0x plus 1 upon d minus 1 whole square into cos 2x. ठीक है. Now in first case tell me the substitution in first case. D equals to 0. D equal to 0. Good. Okay. What is the substitution for next second case? D square equals to minus 4. But there is no d square, तो इसलिए पहले मैंने simplify किया. Now you have to replace d square by minus 1. So sorry, minus 4 minus 4 as a is 2. So it become minus 4 this. तो when I do this simplification आपको ऐसे मिल रहा है. आगे क्या करोगे आप? डेरिवेटिव अप्लाई. डेरिवेटिव अप्लाई मीन्स x नहीं, ये पार्ट सॉल्व करना है अभी. रूल अप्लाई किया मैंने, डी स्क्वायर को माइनस 4 से We रिप्लेस will किया. rationalize. हाँ, क्योंकि इसके Okay, आगे d सॉल्व square. नहीं हो सकता अगर आप एज इट इज रखते हो तो. व्हाट इज द प्रॉब्लम विद दिस पर्टिकुलर इंटीग्रल? वी डोंट हैव एनी डी स्क्वायर, है ना. cos x sin x cos हाइपरबोलिक sin हाइपरबोलिक, इन ऑल दिस केसेस यू हैव टू जनरेट अ डी स्क्वायर. आपको डी स्क्वायर जनरेट करना ही होगा, तभी वो आप रूल यूज कर सकते हो. राइट नाउ वी डोंट हैव एनी डी स्क्वायर इन द गिवन पर्टिकुलर इंटीग्रल, सो वी हैव टू जनरेट दैट डी स्क्वायर. आपको जनरेट करना होगा यूजिंग सम सिंप्लीफिकेशन. सो व्हाट इज दैट सिंप्लीफिकेशन? कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई एंड डिवाइड. कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना, मतलब 2d माइनस 3 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करो, सो दैट इन डिनोमिनेटर यू विल गेट दिस 4d स्क्वायर माइनस 9. डी स्क्वायर जनरेट हो जाएगा. ओके, सो नाउ इन डिनोमिनेटर रिप्लेस डी स्क्वायर बाय माइनस 4 अगेन. ओके, आई थिंक दैट गिव्स यू 25. ठीक है, एंड नाउ यू ऑपरेट दिस cos 2x ऑन न्यूमरेटर ऑपरेटर. ठीक है, तो इट इज नथिंग बट 2d मीन्स डेरिवेटिव ऑफ cos 2x. d मीन्स डेरिवेटिव. ठीक है, so 2d of cos 2x minus 3 of cos 2x. d means derivative, cos का derivative sin आ जाएगा, and after doing all this simplification you will get this, and this is your final answer. ठीक है, ऐड करो. आपको MCQs में सिंपल आने वाले, यहाँ पे थ्योरेटिकल क्वेश्चन है तो थोड़ा बहुत कैलकुलेशन इसमें होगा. ओके, सो आई थिंक आई होप दिस केस इज क्लियर टू यू ऑल. ओके, एनी डाउट इन प्रीवियस केसेस में कुछ भी नहीं था. प्रीवियस केसेस में बस एक स्टेप में आफ्टर डूइंग दैट वन स्टेप सिंप्लीफिकेशन वी हैव कन्वर्टेड दैट पर्टिकुलर केस इन प्रीवियस केसेस, है ना. इन अ सिमिलर वे योर नेक्स्ट केस इज x इंटू वी. इसमें भी वही है. ओके, आपको एक सिंप्लीफिकेशन है आपके पास. यूजिंग दैट सिंप्लीफिकेशन यू विल गेट 1/5 of d इंटू operated on x into v is equal to x minus phi dash of d upon phi of d into 1/5 of d into v. अब इसका प्रूफ इतना ट्रिवियल नहीं कि मैं इमीडिएटली लेक्चर में ले सकता हूँ. ठीक है, और कुछ ऐसी चीज़ें जिसमें एक्सप्लेन करने में टाइम जाएगा, बट इफ़ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन फाइंड दिस प्रूफ ऑन इन एनी बुक और इन ऑनलाइन आल्सो.
ठीक है, वो डी स्क्वायर डी क्यूब करते हैं, फिर मतलब डी रेस्ट टू एन का रिजल्ट कैलकुलेट करके फिर फाइव डी में लिखते हैं, क्योंकि डी रेस्ट टू एन के लिए अगर वो करते हैं तो इन जनरल वो पॉलिनोमियल के लिए भी लिख सकते हैं, ठीक है। सो ऐसे उन्होंने किया है। सो डी रेस्ट टू एन के लिए कैलकुलेट करने के बाद फाइव डी को उससे रिप्लेस करते हैं एंड देन थोड़ा बहुत सिंप्लीफिकेशन होगा, देन यू विल गेट अ टर्म लाइक दिस, ओके। बट आइडिया वही है, मैंने इसलिए प्रूफ में इन डिटेल में एक्सप्लेन नहीं किया था, बट मैंने आपको एक हिंट दी थी। यहाँ पे आपको एडजस्टमेंट जो हो रही है ना वो डेरिवेटिव से हो रही है, जहाँ पे जिस पावर पे वो फंक्शन रिपीट होता है ना उस अकॉर्डिंग आपका सब्स्टिट्यूशन होता है। जैसे कि एक्सपोनेंशियल में एक ही पावर पे डिग्री ऑर्डर 1 पे ही रिपीट हो रहा था, इसलिए डी रिप्लेस बाय ए था, है ना, ऐसे वो ट्रिक आप याद रखो। आई थिंक एट दिस लेवल दिस नॉलेज इज इनफ, इतना इनफ है, ओके। प्रूफ के लिए जब आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ जाएगा देन यू कैन रेफर दैट प्रूफ, ओके ओके। से एट देन मैथमेटिक्स एज फार एज इंजीनियरिंग इज कंसर्न, आपको ज़्यादा फोकस अप्लाइड व्यू में देखना है, एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू में देखना है, अप्लाई कैसे करना है, कहाँ पे आने वाला है, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। प्रूफ आपको कहीं पे भी मिल जाएंगे। जो जो छोटे छोटे प्रूफ है वो मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ लेक्चर में, बट जो लेंदी है वो मैंने स्किप की, ओके ओके। हाँ, सो अगेन दिस इज द फॉर्मूला, दिस इज द फॉर्मूला। इसके पीछे भी एक प्रूफ है एंड यूजिंग दैट प्रूफ वी कैन से दिस टू वैल्यूज आर इक्वल, ठीक है। तो हमने एक ऐसा सिंप्लीफिकेशन निकाला है जिससे ये प्रॉब्लम आपका प्रीवियस केसेस में कन्वर्ट हो रहा है। तो इन दोनों केसेस में आपका लॉजिक क्या है कि आपको बस उसको प्रीवियस केसेस में कन्वर्ट करना है। सो x इंटू वी इज इक्वल टू एक्स माइनस फाइव डैश ऑफ डी अपॉन फाइव ऑफ डी इंटू 1 अपॉन फाइव ऑफ डी इंटू वी। तो ये जो पार्ट यहाँ पे दिखाई दे रहा है ये आपको प्रीवियस केसेस से सॉल्व करना है, ओके। सपोज आपने इसको सॉल्व किया प्रीवियस केसेस से, तो इसके जगह पे एक फंक्शन आ जाएगा, लेट अस कॉल p ऑफ x। अगर आपने वी हैव टू सॉल्व दिस पार्ट यूजिंग द प्रीवियस केसेस मतलब ए रेज टू एक्स क्या है, फिर साइन कॉस, साइन हाइपरबोलिक, कॉस हाइपरबोलिक, पॉलिनोमियल, इतने ही केसेस है वो, ओके। सो फ्रॉम दोज केसेस वी हैव टू सॉल्व दिस। सॉल्व करने के बाद एक पॉलिनोमियल या फंक्शन आपको मिल जाएगा। फिर उसके बाद कैसे करोगे, मतलब ये ऐसे कुछ दिखाई देगा, उसके आगे कैसे करोगे वो मुझे चाहिए। इसके आगे कैसे करोगे, हाँ नेक्स्ट क्या करोगे, इसके आगे कैसे करोगे, अंदर मल्टीप्लाई करो x इंटू पी ऑफ एक्स माइनस फाइव डैश ऑफ डी। हाउ यू सॉल्व दिस, इसको कैसे सॉल्व करोगे बोलो। फर्स्टली अप्लाई डेरिवेटिव। तो ये तो क्लियर है, जो न्यूमरेटर में आता है वो डायरेक्टली डेरिवेटिव अप्लाई करना है। तो ये ऑपरेटर अभी नाउ, सो दिस पार्ट दिस इज एक्चुअली अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू ऑपरेटर, दिस इज एक्चुअली अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू ऑपरेटर। कैसे मैं आपको दिखाता हूँ, वन इज फाइव डैश ऑफ डी, दिस इज वन ऑपरेटर, सेकंड ऑपरेटर इज 1 अपॉन फाइव ऑफ डी इंटू पी ऑफ एक्स। ये ऐसे आप इमेजिन करो, ठीक है। एट द इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू ऑपरेटर, वन इज फाइव डैश ऑफ डी, सेकंड इज 1 अपॉन फाइव ऑफ डी। नाउ यू टेल मी, तो ये पहले आपको सॉल्व करना होगा। आप ये भी कर सकते हो, इसमें कोई सीक्वेंस इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये आप करते हो तो ईजी हो जाएगा। आपको पहले ये सॉल्व करना होगा। ये सॉल्व करने के लिए सेम लॉजिक है, यूज द प्रीवियस केसेस। तो इसमें 2 बार आपको करना है, यहाँ पे भी एक बार सॉल्व करना है, अंदर भी एक बार सॉल्व करना है, एंड फिर जब ये सॉल्व हो जाता है यू विल गेट सम q ऑफ x, और फिर आपको वो फाइव डैश ऑफ डी पे ऑपरेट करना है। सो 3 टाइम्स सॉल्व करना है। अब देखो 1 देन दिस सेकंड देन थर्ड। सो 3 टाइम्स आपको ये पर्टिकुलर इंटीग्रल सॉल्व करना है, तब जाके आपको फाइनल आंसर मिलने वाला है। थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है? इज दिस क्लियर? Is this clear or not? Sir, please repeat the blue part. Which part? This part? Blue color, which we have written in blue color. Okay, हाँ. See, I think ये तो क्लियर हो गया कि आपको ये प्रीवियस केसेस से सॉल्व करना है, ठीक है। अभी आपने ये सॉल्व किया, ऐसे एज्यूम करो व्हेन यू सॉल्व दिस यू विल गेट सम वैल्यू हियर। लेट अस कंसिडर दैट वैल्यू एज p of x. Now this whole problem become x minus phi dash of d upon phi of d into p of x. वैसे एग्जाम्पल से और भी क्लियरली समझ में आएगा, इसके आगे मैं एक्सप्लेन करता हूँ। जस्ट मल्टीप्लाई p of x इन ब्रैकेट, यू विल गेट x इंटू p of x। इसमें कुछ भी चेंज नहीं करना है क्योंकि इसमें phi of d है ही नहीं। सॉल्व करना है मतलब phi of d को रिमूव करना है, सॉल्व करना है मतलब phi of d को रिमूव करना है। नेक्स्ट, जब आप ये पार्ट देखते हो ना phi dash of d अपॉन phi of d,
इट इज एक्चुअली अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू ऑपरेटर। ये बेसिकली यहाँ पे आपके पास दो ऑपरेटर है, एक ऑपरेटर आपका क्या है फाइव डैश ऑफ डी एंड एक ऑपरेटर आपका क्या है 1/5 ऑफ डी। इसमें कुछ डाउट्स है? ये क्लियर हो गया? ये बेसिकली दो ऑपरेटर का कॉम्बिनेशन है। जब आप ये भी कंसिडर करते हो ना डी स्क्वायर प्लस 1/d माइनस 1, दिस इज एक्चुअली टू ऑपरेटर। वन इज ओनली डी स्क्वायर प्लस 1 when you apply on p of x, one is only d square plus 1 and second is 1/d minus 1 on p of x। ये आपके ऊपर डिपेंड है कि पहले आपको p of x इस पे ऑपरेट करना है, d स्क्वायर प्लस 1 पे ऑपरेट करना है, या 1/d माइनस 1 के ऊपर ऑपरेट करना है। इट इज योर चॉइस। रैंडम में भी जाते हो तो भी आंसर करेक्ट आता है। ओके, सो बट इट्स बेटर फर्स्ट टू ऑपरेट 1/5 ऑफ d। ठीक है, तो हाँ, सो पहले आपको ये सॉल्व करना होगा। ओके, एंड फॉर दिस अगेन वी हैव टू कंसिडर द प्रीवियस केसेस। ओके, एंड ये सॉल्व होने के बाद आपको कुछ तो q ऑफ x आंसर मिलेगा, देन इट बिकम x इंटू पी ऑफ x माइनस फाइव डैश ऑफ d इंटू q ऑफ x। फिर आपको ये सॉल्व करना होगा। व्हेन यू सॉल्व दिस यू विल गेट सम r ऑफ x एंड दैट इज योर फाइनल आंसर। ओके, नाउ लेट अस डिस्कस डायरेक्टली विद फ्रॉम वन एग्जांपल। ठीक है, मैं आपको सॉल्व करके देता हूँ तो ये इशू नहीं आएगा। ठीक है, let us calculate yp directly. So yp is equal to, बोलो आप, बोलो अभी, बोलो क्या लिखना है, बोलो। 1/m स्क्वायर प्लस 4m स्क्वायर प्लस 4x इंटू साइन एक्स। ओके, फॉर्मूला में लिख देता हूँ आपके लिए 1/5 ऑफ डी। x इंटू वी का फॉर्मूला क्या है, इन वन ब्रैकेट x माइनस 5 डैश ऑफ डी अपॉन 5 ऑफ डी। यू हैव टू रिमेंबर दिस फॉर्मूला, देयर इज नो अदर वे, क्योंकि प्रूफ इतना ट्रिवियल नहीं जिसको एक्सप्लेन करके आप इसको याद रख सकते हो। यू हैव टू रिमेंबर दिस। ओके, सो x माइनस 5 डैश ऑफ डी अपॉन 5 ऑफ डी इंटू 1/5 ऑफ डी इंटू वी। जस्ट चेक दिस एंड टेल मी द सिंप्लीफिकेशन इन दिस केस। आप बोलो, मैं लिख लेता हूँ। x माइनस, टेल मी। 2d upon वेरी गुड, 2d अपॉन d square plus 4 d स्क्वायर प्लस 4 into 1 upon d square plus 4 into sin x। sin x। okay, good। now our first target is we have to solve this। इसको हमें पहले सॉल्व करना है, तो कैसे करना होगा, बोलो। put what, square equals to -1 equal to -1। -1। okay, so this gives me x minus 2d upon d square plus 4। ये होगा आपका डी स्क्वायर रिप्लेस बाय -1। अभी डायरेक्ट करता हूँ। व्हेन यू रिप्लेस डी स्क्वायर बाय -1 प्लस 4 बिकम 3, सो इट इज एक्चुअली 1/3 साइन एक्स। ये हो गया सॉल्व। अब देखो, अभी यहाँ पे फंक्शन आ रहा है, अभी अंदर मल्टीप्लाई करना है। सो इट इज इक्वल टू x/3 साइन एक्स, ओके, माइनस 2/3 d अपॉन डी स्क्वायर प्लस 4 साइन एक्स। करेक्ट लिखा है मैंने ये? इज दिस करेक्ट? यस सर। ओके, अभी आपको मैंने क्या बोला था, ये जो भी फैक्टर आपको यहाँ पे मिलता है ब्रैकेट के अंदर, इट्स एक्चुअली कॉम्बिनेशन ऑफ टू डिफरेंट ऑपरेटर। सो 1 by 1 आपको ऑपरेट करना है। तो आप, मैं आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए लिख रहा हूँ ये स्टेप में, तो जरूरी नहीं है। सो इट इज एक्चुअली कॉम्बिनेशन ऑफ टू डिफरेंट ऑपरेटर, वन इज d, सेकंड इज 1/d स्क्वायर प्लस 4। तो 1 by 1 आपको ऑपरेट करते जाना है। Sir, हाँ, why do we put d square is equal to -1? अगेन यू आर ऑन दैट सेम पेज। सी, ये जो फॉर्मूलेज मैं आपको दे रहा हूँ ना, इसके पीछे प्रूफ है। यू वांट मी टू गिव दैट प्रूफ? No, sir. हाँ, सो इसके पीछे एक प्रूफ है। इफ यू आर इंटरेस्टेड आई विल एक्सप्लेन इन ट्यूटोरियल। ठीक है, बट इन एवरी केस देयर इज सम प्रूफ। ओके, क्योंकि ये डायरेक्टली तो नहीं आ सकता है ना, तो ये हमने किया है, वर्कआउट किया है पहले, तब जाके आपको समझ में आ रहा है कि दिस टू वैल्यूज आर इक्वल। ओके, इफ पॉसिबल आई विल गिव यू एटलीस्ट फॉर दिस केस, एक केस का प्रूफ मैं आपको देता हूँ, आपको थोड़ा समझ में आएगा कि मैं प्रूफ क्यों अवॉइड कर रहा हूँ। ठीक है, आई विल गिव यू वन प्रूफ एंड देन यू इन ए सिमिलर वे यू कैन रेफर फॉर द नेक्स्ट केसेस। ठीक है, ओके, तो अभी के लिए क्वेश्चन होल्ड पे रखता हूँ, मैं साइड में रखता हूँ। y/2 रिप्लेस डी स्क्वायर बाय -a²। बट जो भी रिजल्ट्स मैं आपको दे रहा हूँ ना, ये डायरेक्ट नहीं है, मतलब इसके पीछे एक प्रूफ है, एंड उसके बाद ही हम अभी ये बोल सकते हैं कि साइन एक्स कॉस एक्स आता है तो मैं डी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर से रिप्लेस कर सकता हूँ। ओके, कर सकता हूँ, मतलब ये दोनों वैल्यू सेम है।
ठीक है, आपको पता है मैथमेटिक्स से तो LHS मस्ट बी इक्वल टू RHS, तब जाके वो आप उसको उसमें वो चेंजेस कर सकते हो, है ना। सेम यहाँ पे भी है, ये वैल्यू एग्जैक्टली इक्वल टू ये वैल्यू है, ये बोलने के लिए उसके पीछे एक मैथमेटिकल प्रूफ होगा। तो यही सारा मैंने ऑलरेडी वहाँ पे कंसिडर किया। सो फॉर ए एक्सपोनेंशियल फंक्शन, फॉर ए रेज़ टू एक्स फंक्शन, फॉर साइन कॉस फंक्शन, फॉर पॉलिनोमियल फंक्शन, वो एडजस्टमेंट लोवेस्ट डिग्री टर्म, ओके। तो ये सारे इसके सारे इन सब के पीछे वहाँ पे मैथमेटिकल प्रूफ है, ठीक है। एक केस में मैं आपको दे ही देता हूँ, तो ये आगे क्वेश्चन नहीं आएगा, ओके। या सो इट्स एक्चुअली कॉम्बिनेशन ऑफ टू डिफरेंट ऑपरेटर। ये कैसे किया है फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। साइन एक्स की केस ऑलरेडी हमने कवर की है, साइन एक्स एंड कॉस एक्स की केस। साइन एक्स एंड कॉस एक्स के केस में आप डी स्क्वायर को किससे रिप्लेस करते हो, माइनस ए स्क्वायर से रिप्लेस करते हो। क्लियर हो गया सबको, ये हमने ऑलरेडी देखा है ना लास्ट लेक्चर में। Yes, sir. हाँ, इन केस ऑफ साइन एक्स एंड कॉस एक्स फंक्शन वी रिप्लेस डी स्क्वायर बाय माइनस ए स्क्वायर। हियर ए इज 1, एक्स कोएफिशिएंट 1 है, इसलिए डी स्क्वायर माइनस 1 से रिप्लेस हो रहा है। व्हेन वी हैव साइन हाइपरबोलिक फंक्शन, डी स्क्वायर प्लस 1 से रिप्लेस होगा। व्हेन वी हैव एक्सपोनेंशियल फंक्शन, डी ए से रिप्लेस होगा। व्हेन वी हैव ए रेज़ टू एक्स फंक्शन, डी log ऑफ एक्स से रिप्लेस होगा, log ऑफ एक्स से रिप्लेस होगा, सॉरी log ऑफ ए से रिप्लेस होगा, लाइक दैट, ओके ओके। हाँ, सो हियर दिस इज एक्चुअली कॉम्बिनेशन ऑफ टू डिफरेंट ऑपरेटर डी एंड 1 अपॉन डी स्क्वायर प्लस 4, ओके। आगे बोलो क्या करना है, ये कैसे सॉल्व करोगे, 1 अपॉन डी स्क्वायर प्लस 4 इंटू साइन एक्स, यस, Again replace d square by -1. सेम फॉर्मूला फिर से आने वाला है ना। इसमें आपको क्या करना है, रिप्लेस या बिकॉज ये एक पर्टिकुलर केस है, साइन एक्स आ गए तो शॉर्टकट मेथड में जब साइन एक्स राइट साइड में होता है आप डी स्क्वायर रिप्लेस करते हो माइनस ए स्क्वायर से, बट ए यहाँ पे 1 है, सो माइनस 1 से, सो रिप्लेस डी स्क्वायर बाय -1, सो दिस बिकम एक्स बाई 3 साइन एक्स माइनस 2 बाई 3 डी एज इट इज। इसका आंसर आने वाला है डी स्क्वायर रिप्लेस बाय -1, सो 1 बाई 3 इंटू साइन एक्स, करेक्ट है, 1 बाई 3 इंटू साइन एक्स। So this become x by 3 sin x minus 2 by 9. Derivative of sin x is what? What is the derivative of sin x? Cos x. Cos x. ठीक है, हो गया, इतना ही है। This is your final wiping. Okay. Let me take one more example और फिर मैं आपको प्रूफ देता हूँ। लेट अस डू दिस। अभी आप बोलते जाओ, मैं लिख लेता हूँ। वाई पी 1 अपॉन वॉट, डी स्क्वायर माइनस 4 एक्स कॉस हाइपरबोलिक एक्स। नाउ टेल मी द नेक्स्ट स्टेप। एक्स इंटू वी का प्रोडक्ट है, ठीक है, तो वो रिजल्ट आपको यहाँ पे यूज करना है। बोलो, यस, टेल मी, रॉन्ग आने दो, रॉन्ग आने दो, कोई इशू नहीं है, आप बोलो तो सही, तब मैं लिख लेता हूँ। Yes. X minus x in bracket हाँ, x माइनस 2d upon d square minus 4. d square minus 4 हाँ, ब्रैकेट कंप्लीट 1 अपॉन द सेम वैल्यू d square minus 4 into cos of hyperbolic x। ओके, हाँ, सो अभी इसको पहले ऐसे कंप्लीट करो। हाँ, इस केस में नाउ ऑन RHS वी हैव cos हाइपरबोलिक फंक्शन, व्हाट इज द रिजल्ट, डी स्क्वायर किससे रिप्लेस करना होगा, 1 से, ए स्क्वायर से। व्हेन यू रेफर द केस ऑफ cos हाइपरबोलिक फंक्शन वी हैव टू रिप्लेस डी स्क्वायर बाय प्लस ए स्क्वायर, ए की वैल्यू 1 है तो डी स्क्वायर बाय 1, सो दिस बिकम 1 अपॉन दिस, सो इट बिकम आई थिंक माइनस 1 बाय 3 cos हाइपरबोलिक एक्स। अभी अंदर मल्टीप्लाई करो, सो माइनस एक्स बाय 3 cos हाइपरबोलिक एक्स, ये माइनस माइनस प्लस होगा 2d अपॉन डी स्क्वायर माइनस 4 cos हाइपरबोलिक एक्स। अभी यहाँ पे ऑपरेट करना है, इसमें दो ऑपरेटर है, एक 2d है, हाँ, एक 2d और एक 1 अपॉन डी स्क्वायर माइनस 4। तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, अभी सेपरेट नहीं कर रहा क्योंकि समझ में आ जाएगा आपको, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। सो इट इज इक्वल टू, बोलो, d square equals to 1. minus x by 3 cos hyperbolic x, again d square equal to 1, so when I replace d square by 1 it gives me minus 2d by 3 ना into cos hyperbolic x The previous 3. and previous 3, so यहाँ पे रह गया था वो शायद, is it correct now?
Yes. Okay, and now tell me final answer. So x by 3 cos hyperbolic x, ये minus 2 by 9. Derivative of cos hyperbolic x is what? Sin hyperbolic. Sin hyperbolic x. ये सेम होता है, साइन भी नहीं आता. हो गया फाइनल आंसर. इतने ट्रिवियल क्वेश्चन है. ओके, सिंपल सिंपल डेरिवेटिव्स है, बस आपको वो आइडेंटिफाई होना चाहिए कि ये कौन से केस का प्रॉब्लम है. इस ये प्रोडक्ट में फंक्शन आता है तो लास्ट दो ही केसेस है आपको सिलेबस में, इसके बाहर नहीं है. ठीक है, and the in detail solution is there in this PPT, you can refer that. Okay, so I think यहाँ पे हमने शॉर्टकट मेथड को ही कंप्लीट किया है. I have 2-3 minutes. Let me give you a proof of this. Any one proof. Now this part is not there in your syllabus, just for your interest I am giving. Okay. तो हम क्या करते हैं, कोई भी एक प्रूफ कर लेते हैं. जैसे e raised to x into v की केस है ना, विल ट्राई टू प्रूव दैट. ओके, सो हमारा टारगेट क्या है, वी हैव टू प्रूव दिस 1/phi of d e raised to ax into v इज इक्वल टू, हमने ऐसे लिखा था ना, e raised to x 1/phi of d plus a into v. ओके, मैं क्विकली करने वाला. सो लेट अस फर्स्ट कैलकुलेट दिस d of e raised to x into v. So it is equal to first function derivative of second plus second into derivative of first, so which is a e raised to ax, and this can be written as e raised to ax. If I take common, in bracket you will get dv plus av, and this can be written as e raised to ax d plus a into v. Okay, हाँ मैम, हाँ हाँ मैम बोलो. हाँ ओके, हाँ हाँ ओके, तो मुझे 2 to 3 लेना है, ऐसा बोल रहे हो. ओके, ठीक है ना, फिर कर लेते हैं. हो नो प्रॉब्लम. चलेगा चलेगा ना. ओके, हाँ. सो एंड अगेन इफ आई अप्लाई one more d, means if I consider d square of this, if I take one more derivative of this, okay, सो वो मैं स्किप कर रहा हूँ. ओके, सिंपल डेरिवेटिव, इसको एक और बार डिफरेंशिएट करना है. फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट. मैं रफली आइडिया दे रहा हूँ एज वी हैव वेरी लेस टाइम. तो ये 100% आने वाला है दिस d प्लस ए होल स्क्वायर इंटू वी. ओके, ये स्क्वायर मतलब आपको पता है डी स्क्वायर प्लस 2da प्लस ए स्क्वायर, उसमें एडजस्ट होकर आपको मिल जाएगा. ठीक है, सो and in a similar way, when you generalize this, when you consider d raised to n e raised to x into v, you will get here e raised to ax d plus a raised to n into v. ठीक है, हाँ. अभी आप किसी भी रैंडम d के लिए कर सकते हो. सॉरी, नाउ वी हैव अ रिजल्ट फॉर एनी रैंडम d, d स्क्वायर, d क्यूब, d रेज टू n के लिए आपके पास रिजल्ट है. सो दिस इज रिप्लेस बाय phi of d, क्योंकि phi of d इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दिस पावर्स ना, d, d स्क्वायर, d क्यूब, d रेज टू 5 एंड सो ऑन. सो इट्स अ पॉलिनोमियल इन d जिसमें पावर चेंज होते हैं d के. सो यू कैन डायरेक्टली रिप्लेस दिस d रेज टू n बाय phi of d. जनरलाइज कर रहा हूँ मैं इसको, और जनरलाइज कर रहा हूँ. d रेज टू n के लिए रिजल्ट दिया है मैंने. इंस्टेड ऑफ दैट यू कैन डायरेक्टली राइट इट फॉर phi of d, क्योंकि कुछ भी चेंज होगा नहीं, डेरिवेटिव एडिशन वाइज सेपरेट होता है. तो जो भी मतलब अगर आपने डी स्क्वायर के लिए रिजल्ट निकाला है तो डी स्क्वायर प्लस डी क्यूब के लिए भी वो रिजल्ट कंटिन्यू कर सकते हैं, क्योंकि सेम ऑपरेट करके जाना है आपको. सो डी रेज टू एन का रिजल्ट है phi of d, इट्स एडिशन ऑफ ऑल दिस नंबर्स. ठीक है, तो उसके लिए भी ये रिजल्ट आप कंटिन्यू कर सकते हो, e रेज टू x इंटू वी विच इज इक्वल टू e रेज टू ax. हाँ, अब इसमें क्या चेंज होगा, जस्ट 1 मिनट है. phi of d, हाँ, तो इसमें क्या चेंज होगा, व्हेन आई रिप्लेस दिस बाय phi of d, इसके जगह पे क्या आने वाला है, phi of d प्लस a इंटू v, है ना.
डी वेरिएबल का फंक्शन है तो उसके करस्पॉन्डिंग पॉलिनोमियल आ जाएगी फाई ऑफ डी। डी प्लस ए वेरिएबल का फंक्शन है तो उसके करस्पॉन्डिंग आपकी पॉलिनोमियल आ जाएगी फाई ऑफ डी प्लस ए। ओके, एंड then just for simplicity, just consider this phi of d plus a, let phi of d plus a into v is equal to v1, correct, which implies v is equal to 1 upon phi of d plus a into v1. Now we have to put this value in this equation. कहाँ पे था ये, इसमें आप पुट करो. So put in equation 1. So you will get phi of d e raised to x into 1 upon phi of d plus a into v1, correct, is equal to e raised to ax. This whole value itself is v1. ठीक है. And now okay, this phi of d I have to shift on RHS, so it become e raised to ax 1 upon phi of d plus a. Let me write it. ये राइट साइड में शिफ्ट करो, you will get 1 upon phi of d e raised to x into v1. Okay, हो गया. Now this is for any random v1, है ना. This is for any random v1. मैंने यहाँ पे मैंने सिलेक्ट किया है ना, so I can replace this v1 by v and that completes my proof. Okay, let me repeat again. मुझे पता है इतने जल्दी आपको नहीं समझ में आएगा. Okay, see मुझे क्या करना है, मुझे एक रिजल्ट चाहिए phi of d के लिए. Phi of d आपको पता है क्या है. Phi of d क्या है बेसिकली, let us consider an d raised to n plus an minus 1 d raised to n minus 1 and so on. It's a polynomial, sorry, a not, okay, it's a polynomial in d. ठीक है, पॉलिनोमियल के लिए रिजल्ट आइडेंटिफाई करने के लिए मुझे सारे डी के पावर देखने होंगे क्या आते हैं. डी का आंसर क्या होता है, डी स्क्वायर का आंसर क्या होता है, डी क्यूब का आंसर क्या होता है, डी रेज़ टू 4 का आंसर क्या होता है. इसलिए पहले मैं उसको जनरलाइज कर रहा हूँ. फर्स्ट आई हैव टू आइडेंटिफाई फाई ऑफ डी को डायरेक्ट ऑपरेट करने से पहले ये देखो कि डी ऑफ दिस फंक्शन क्या आता है. तो वो मैंने कैलकुलेट किया. डी स्क्वायर क्या आता है वो देखो, फिर उसको जनरलाइज करो, तब मुझे समझ में आता है डी रेज़ टू n ऑफ e रेज़ टू x into d is equal to e raised to x into d plus a raised to n into v. ओके, ये आपके ऊपर छोड़ा है मैंने चेक करने का. ये ट्रिवियल है, आप जो डेरिवेटिव का नॉलेज है वो अप्लाई करो, यू विल गेट दिस. इतना डिफिकल्ट नहीं है. ओके, अभी आपके पास ये रिजल्ट है, ये डी रेज़ टू n जब आप इसको अप्लाई करते हो तब ये वैल्यू मिलती है. ओके, म्यूट योरसेल्फ, इसका तो माइक ऑन है. हाँ, इस रिजल्ट का मीनिंग क्या है कि जब आप डी रेज़ टू n उस फंक्शन पे अप्लाई करते हो, इस फंक्शन पे जब आप डी रेज़ टू n अप्लाई करते हो आपको ये आंसर मिलता है. आप डी रेज़ टू n को डायरेक्टली फाई ऑफ डी से रिप्लेस कर सकते हो. इसका रीजन मैं आपको बोलता हूँ. फर्स्ट, डेरिवेटिव एडिशन वाइज सेपरेट होता है. डेरिवेटिव आपका एडिशन वाइज सेपरेट होता है. तो आप एज्यूम करो कि फाई ऑफ डी के जगह पे यहाँ पे मैं ये लेने वाला हूँ, है ना, डी रेज़ टू n प्लस डी रेज़ टू n माइनस 1 एंड सो ऑन up to some constant into this function. ठीक है, तो डी रेज़ टू n ये सेपरेट होगा, डी रेज़ टू n माइनस 1 सेपरेट होगा. तो इसलिए एक डी रेज़ टू n का अगर आप रिजल्ट निकालते हो तो ये फाई ऑफ डी में एज इट इज चेंज होगा एंड ये सेम चेंज रिफ्लेक्ट हो जाएगा सम पॉलिनोमियल इन फाई ऑफ डी प्लस ए. ये स्टेप क्लियर हो रही है. फिर से एक्सप्लेन करूँ, एक और वे है मेरे पास एक्सप्लेन करने का. ये क्लियर हो रहा है सबको कि डी रेज़ टू n का जो रिजल्ट है आई कैन डायरेक्टली ट्रांसफर इनटू फाई ऑफ डी. इज दिस क्लियर? या एक्सप्लेन करो मैं इन डिटेल में स्मॉल केसेस में, स्मॉल पार्ट्स में एक्सप्लेन करता हूँ. आई डोंट नो व्हाट इज द टाइम नाउ. सी, लेट अस चेक फॉर अ सिंपल केस. इफ आई कंसिडर अ पॉलिनोमियल लाइक दिस डी स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, e रेज़ टू x इंटू v. तो ये चेंज क्या होता है देख लेते हैं. सो इट गिव्स मी डी स्क्वायर e रेज़ टू x इंटू v प्लस v. करेक्ट. नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस डी स्क्वायर? अभी हमने कैलकुलेट किया ना, डी रेज़ टू n का रिजल्ट है. तो इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर क्या आएगा बोलो? डी रेज़ टू n का आपके पास रिजल्ट है तो इसका आंसर क्या आएगा?
yes, d raised to n of e raised to x into v is e raised to x d plus a raised to n into v. So what is value of this? सिंपल क्वेश्चन है. n का रिजल्ट है मुझे n इक्वल टू 2 के लिए रिजल्ट चाहिए. सो व्हेन आई पुट n इक्वल टू 2 दिस गिव्स मी e रेज टू ax d प्लस a स्क्वायर इनटू v प्लस v as it is. So if I take v common in bracket I will get here e raised to x, okay, d plus a होल स्क्वायर प्लस 1 इंटू वी. ये क्या है बेसिकली, अगर आप इस पॉलिनोमियल को फाई ऑफ डी बोलते हो, फाई ऑफ डी पॉलिनोमियल इन डी, तो इस पॉलिनोमियल को आप क्या बोलोगे, फाई ऑफ डी प्लस ए. सेम है ना, डी के जगह पे डी प्लस ए रखते हो तो ये मिल जाता है, डी के जगह पे डी प्लस ए रखते हो तो ये मिल जाता है. इसलिए आप फाई ऑफ डी जब यहाँ पे लेते हो तब यहाँ पे फाई ऑफ डी प्लस ए आता है फ्रॉम दिस. ओके, इसके आगे ट्रिवियल है, इसको बस मैंने एक V1 ट्रेड करके डायरेक्टली वो फॉर्मूला निकाला है. ऐसे सारे प्रूफ्स है. ओके, आई एम नॉट इंटरेस्टेड टू एक्सप्लेन दिस प्रूफ्स. ओके, इट इज़ नॉट एट ऑल इन योर सिलेबस. ओके, बट ऐसे सारे प्रूफ्स है जिसके वजह से आपको वो सारे रिजल्ट्स मिल रहे हैं. ई रेज टू एक्स मतलब ये जो चेंज हमने किया, ठीक है. सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन रेफर, बट इट्स माई सजेशन फर्स्ट यू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम, डेप्थ ऑफ द प्रॉब्लम. जो चेंज हो रहा है वो पहले आप देखो, उसके बाद जब आप ये प्रूफ रेफर करते हो ना तब आपको वो क्लिक हो जाता है, क्योंकि आपने वो सारा इन बिटवीन का कैलकुलेशन किया होता है. ठीक है. सो लेट स्टॉप हियर फॉर ऑल द टाइम. ओके, एनी डाउट फ्रॉम योर साइड? So shortcut method is over now. Okay, and in today's tutorial we'll discuss the MCQs up to this topic. Any doubt? Okay, so let us stop here.